Hello students, yesterday all of you know about Albert Einstein through the lesson A Truly Beautiful Mind, and we will see today para 5th. The previous year Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. The previous year Albert's parents had moved to Milan. मिलान एक प्लेस है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स चले गए मिलान नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पिछले साल, और एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने सन को रिलेटिव्स के पास छोड़ गए, रिश्तेदार के पास छोड़ गए. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच. और इसके बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मनी. Einstein wished that he continue his education in German speaking and Switzerland in a city which was more liberal than Munich, जो कि स्विट्जरलैंड उससे अधिक उदार था. लिबरल मीन्स उदार होता है, उससे इनको वाज लिबरल देन मुनिच, जहां ये रहते थे उससे ये शहर इनको अच्छा लग रहा था. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. Einstein was interested in mathematics and physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. And after finishing his education, Albert Einstein decided to study university in Zurich. But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus moustache. But science was not the only thing. उन्होंने विज्ञान ही एक ऐसा विषय नहीं था जो उस तेज युवक जिसकी लंबी और लटकी हुई मूछें हैं की रुचि को पूरा करता. ओनली साइंस डज नॉट कंप्लीट द अल्बर्ट आइंस्टीन बिकॉज ही वांटेड मोर एंड मोर अदर थिंग्स साइंस. नेक्स्ट, he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever teacher. He also felt a special interest in a fellow student. He also Albert Einstein, Mileva Maric, this is a name. मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever teacher, जिसको उन्होंने अच्छा समझा. मिलेवा मैरिक एक स्त्री थी जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, जिसको इन्होंने अच्छा समझा. दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख was one of the few in Europe where women could get degrees. This young sir had come to Switzerland. This young sir, Albert Einstein, come Switzerland because the University of Zurich was one of the few universities in Europe where women education or women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टीन ने उसमें एक ऐसा साथी देखा जो उन लोगों के विरुद्ध था
जो उन लोगों के विरुद्ध था, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एक्ट सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, पीपल इन हिज फैमिली एंड एक्ट सर्वाइव इन विच यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds, उसने उसमें देखा और वो उससे लगातार उसका लगाव बढ़ता रहा। द कपल फेल इन लव एंड फैमिली एट odds, द कपल फेल इन लव एंड दे फेल इन लव। his fellow loved him very much, so he attached with her. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein. And they wrote letters with each other, wrote Einstein. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन सेड दैट हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना प्रसन्न और गर्वित होऊंगा व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क इन रिलेटिविटी, जब हम लोग अपने दोनों लोग मिलकर वर्क करेंगे, मिलकर अपना काम करेंगे और उसमें उसको एक विक्टोरियस कंक्लूजन और उसको जीत की तरफ ले जाएंगे, उसका निष्कर्ष जीत होगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में at the age of, जब उनकी एज 21 years थी, अल्बर्ट आइंस्टीन was a university graduate and unemployed. अल्बर्ट आइंस्टीन was a university graduate and unemployed. उनके पास कोई वर्क नहीं था, वो बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. They secured a job in 1902 as a technical expert के रूप में उन्होंने काम किया 1902 ईस्वी में इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और बर्न के एक ऑफिस में। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. While जबकि सोचा जाता था कि वे अन्य लोगों में बर्न में पेटेंट ऑफिस में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उनको जब नौकरी मिल गई तो उनके बारे में सोचा जाता था कि वे अदर पीपल्स इन्वेंशंस कि वे आविष्कार करेंगे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, आइंस्टीन अपने आइडियाज को हमेशा डेवलपिंग मतलब विकसित करते रहते थे, बढ़ाते रहते थे, विचारों को बढ़ाते रहते थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, और इस तरह से उनकी जिस पर वे काम करते थे, जिस ड्रॉर में जिस पर बैठकर हम कोई वर्क लिखते हैं, पढ़ते हैं, ड्रॉर उसमें अपने सामान को रखते हैं, उसको उस दराज को, उस ड्रॉर को, डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, जिसको हम थ्योरेटिकल मतलब जो थ्योरेटिकल फिजिक्स सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute. One of the famous papers of 1905, 1905 ईस्वी में एक फेमस पेपर था, जो पेपर कुछ उन्होंने कागज तैयार किए, बाद आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ी हुई स्पेशल थ्योरी तैयार की अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और उन्होंने उसमें टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट
विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, इसमें पूरी तरह से टाइम और डिस्टेंस नहीं रखा गया था। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. If there is two clock, अगर दो घड़ियों को रखा जाए तो सेम टाइम नहीं बताएगी क्योंकि एक उसमें से तेजी से चलेगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड एनर्जी, और यही मैस और एनर्जी का फार्मूला है। मैस और एनर्जी का फार्मूला ये वर्णन करता है। नेक्स्ट वी विल सा टुमारो।